Hello everyone, welcome to Shantman Hospital. On the account of celebrating World Mental Health Day 2024, we at Shantman Hospital have come up with an interesting lineup of special interviews focusing on various mental health issues faced by us at Shantman are dedicated to cater to the psychological, emotional, and social needs of people. Our aim is to create awareness regarding mental health and to break the stigma that the field of mental health carries around with itself. I am Tavleen Kaur Kalsi, psychologist, adolescent counselor, and suicide prevention counselor at Shantman Hospital. I'm delighted to welcome you all to this interview where we talk about various mental health related issues on depression and suicide. Before proceeding ahead, I would like to introduce our interviewer for this segment. We have with us Dr. Jeet Nathpara. Dr. Jeet is a neuropsychiatrist, addiction psychiatrist, adolescent and child psychiatrist, and a sexologist. He is the founder of Shantman Hospital and has an extensive experience of 9 years in the field. He has presented various papers, posters, and publications in national and international journals in the field of psychiatry. And he has also conducted various public lectures in Daman, Padi, Valsad, and Vapi. Sir, we are delighted to have you here among us. Thank you. Today's topic entails a discussion which focuses on issues related to depression, what really depression is, and what can we do to help people who undergo suicidal thoughts. Give us an insight regarding depression. I am honored to introduce our guest for today, Dr. Dipanjali Deshwar. Dr. Dipanjali is a psychiatrist, perinatal psychiatrist, child and adolescent psychiatrist with an experience of 12 years. She is currently working as a consulting psychiatrist at Rajdeep Brain and Behavior Center in Aurangabad. She has extensive experience in treating various types of mental illnesses throughout all age groups. She has published and presented various papers in national and international journals. Ma'am, it's an honor to have you among us. We look forward to gaining much more insight in the areas of depression. Thank you so much. In fact, I am honored to be interacting with you and your team. Yeah, thank you so much, Dipanjali ma'am, for joining us today. And my experience with Dipanjali ma'am is very awesome. अगर मैं गारंटी देता हूँ इंसान डिप्रेशन के साथ अगर मैम के पास एक बार चला गया ना तो बाहर निकलेगा ना तो उसका डिप्रेशन गायब हो जाएगा. She is so cheerful, so fun-loving person. I am really happy to have you here, Dipanjali ma'am. So let's begin with the topic. डिप्रेशन, उदासीनता क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं मैम? ओके सो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर मेरे पास एक बार आके किसी का डिप्रेशन ठीक हो गया होगा तो प्रोबेबली दैट इज नॉट अ डिप्रेशन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन हम बात कर रहे हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर जी. लेट जस्ट डायरेक्टली गो टू अवर टॉपिक, बिकॉज ये जो टॉपिक है आपने जो आज का सिलेक्ट किया ये सब बहुत जरूरी है. बिकॉज डिप्रेशन, उदासीनता, निराशा, इसको अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं. या अवदास या सो और ये क्या है आजकल ना, ये काइंड ऑफ ट्रेंड टर्म की तरह यूज किया जाता है. मतलब मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो ये मेरा XYZ चीज नहीं हुई मेरे मन के हिसाब से तो मुझे डिप्रेस लग गया, या फिर मेरे रील को लाइक्स नहीं मिले तो मुझे डिप्रेस लगा. सो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन एंड एक अच्छा नहीं लगना, ये दोनों अलग चीजें हैं. डिप्रेशन ये एक परसिस्टेंट सैडनेस जो एक काफी समय के लिए रहेगा, जिसमें जो मूड में वेरिएशंस होते हैं वो नहीं होंगे. मतलब जैसे आपको कुछ अच्छी चीज हुई हमें अच्छा लगता है, कुछ बुरी चीज होती है हमें बुरा लगता है, तो हमारे मूड में वेरिएशंस भी रहते हैं. बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन ये मूड वेरिएशंस नहीं रहेंगे, उन्हें परसिस्टेंटली सैड लगेगा. और जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एटलीस्ट 2 वीक तक ये कंडीशन रहती है. और इसके बाकी काफी सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि नींद नहीं आना, या फिर बहुत ज्यादा नींद आना, भूख नहीं लगना या ज्यादा भूख लगना, जो चीजें करना अच्छा लगता था वो करने की इच्छा नहीं होना, एनर्जी कम लगना, कंसंट्रेशन नहीं होना, एंड नंबर ऑफ सिम्टम्स ये परसिस्टेंटली रहते हैं. तो ये डिप्रेशन है. और
मुझे मेरे मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, वो जो लगता है वो जस्ट एक फीलिंग है। सो हमें करेक्ट। इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। करेक्ट। सो अगर इंसान ऐसा बोलता है कि मुझे डिप्रेस लग रहा है, तो दैट डजंट मीन कि उसको क्लिनिकल डिप्रेशन या उसको दवाई की जरूरत है। अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा रहते हैं, एक जैसा रहते हैं, तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। यस मैम, यस। ये चीज होने के कारण क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या क्या रीजंस होते हैं? डिप्रेशन क्यों होता है? सो जो मॉडल अभी हम लोग साइकेट्री में रखते हैं उसे बायो साइको सोशल मॉडल कहा जाता है। मतलब कि कुछ हमारे अंदर बायोलॉजिकल वजह हो सकती है, कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड वजह भी हो सकती है। सो करेक्ट। बायोलॉजिकल वजह जैसे कि जेनेटिक, कि अगर घर में किसी को डिप्रेशन है या कोई और भी साइकेट्रिक बीमारी है, उन लोगों को डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ये भी देखा गया है कि उनके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस देखे गए हैं, ओके। कि पर्टिकुलर ब्रेन एरियाज थोड़े से छोटे रहते हैं कंपेयर टू बाकी अच्छा। लोग। या फिर रिएक्शन टू द स्ट्रेस उन लोगों में, मतलब जब कोई हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो एरियाज लाइट होते हैं तो उनके ब्रेन में वो एरिया ज्यादा लाइट अप होते हैं। सो करेक्ट। ये मतलब बायोलॉजिकली वो लोग ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है। सेकेंड चीज, अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ। सो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज या निग्लेक्ट, वो हमें ज्यादा वल्नरेबल बना सकता है। देन कोई और ट्रोमैटिक इवेंट, जैसे रीसेंट कोई ट्रोमैटिक इवेंट है तो दैट इंक्रीजेस द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्रेशन। करेक्ट। अगर एडवर्स एनवायरमेंट है, जैसे मेजर कोई ये हो जाता है, जैसे सुनामी के बाद काफी सारे लोगों में डिप्रेशन हुआ था। आई लिव इन सेंट्रल महाराष्ट्र, कोविड मराठवाड़, के बाद। या यस। करेक्ट मैम। सो हमारे रीजन में जब भी दुष्काल आता है, मतलब बारिश कम होती है, उस टाइम पे फार्मर सुसाइड एंड फार्मर डिप्रेशन ये काफी वही बढ़ तो। जाता है। सो वही तो। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। डिप्रेशन इज अ सिंड्रोम जिसके बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है, लेकिन जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं तो वो ट्रिगर होता है। सो इट्स लाइक कि जेनेटिक लोड्स अ गन एंड एनवायरमेंट पुल्स अ ट्रिगर। सो करेक्ट। कुछ बताइए बताइए। या सो एंड इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी टाइम आपको डिप्रेशन का कोई रीजन होगा ही। मतलब एक कॉमन ये होता है कि सब कुछ तो इतना अच्छा है और तुमको कैसे डिप्रेशन हो सकता है। सो करेक्ट। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल फिनोमिना है, और इसका हर कोई रीजन होना या फिर इसके लिए हम ब्लेम नहीं ढूंढ सकते। ओके। इट कैन हैपन टू एनी पर्सन। ये मैम, आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं रूटीन में, उसमें से कितने पेशेंट्स को डिप्रेशन मिलता है? कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में डिप्रेशन पाया जाता मेरी प्रैक्टिस में तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट 40% जितने पेशेंट्स मैं देखती हूँ है? और मैम, उनको डिप्रेशन। या उनको एज ग्रुप क्या होता है? मतलब सबसे छोटा व्यक्ति कितने साल का आपके पास डिप्रेशन लेके आया, और सबसे बड़ा व्यक्ति कितने साल का लेके सो मैं अभी एट दिस पॉइंट एक 9 साल के बच्चे को आया? ओके। डिप्रेशन के लिए ट्रीट कर रही हूँ। एंड उसका ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ डिप्रेशन इकलौता डायग्नोसिस है, उसको बाकी अलग डायग्नोसिस भी है। बट पीछे। ही इज द यंगेस्ट चाइल्ड जिसे मैं देख रही हूँ। और सबसे बड़ा व्यक्ति जो सबसे बड़े ये है तो 84 ईयर्स के हैं, उनको डिमेंशिया और उसके साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स दोनों भी हैं। सो करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पहले साइकेट्री में हम लोग ऐसा सोचते थे कि 6 साल के पहले बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता हो सकता, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। अभी ऐसा देखा गया है कि इवन हर कोई किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, बट उनके लक्षण डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब बच्चों में ये थोड़ा सा इरिटेबिलिटी, स्कूल में परफॉर्मेंस कम होना, थोड़े से एडोलेसेंट है तो उसमें सब्सटेंस अब्यूज वगैरह या फिर इस तरीके से। सो लक्षण डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। बट फिर भी मोस्ट कॉमन एज ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं कि मिडिल अडल्ट जो है उनमें ज्यादा पाया जाता है। में काफी बार देखा जाता है। करेक्ट। तो ये जैसे आपने बताया कि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो जैसा वार्निंग साइंस है, ये क्या होता है डिप्रेशन में? मतलब जो रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओके। सो अगर आपको खुद के अंदर कुछ चेंजेस लग रहे हैं, जैसे कि मुझे जो चीजें अच्छी लगती थी वो अब करने की इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है। उदासी कंटिन्यूअसली रह रही है। ठीक है। किसी से बात करने की इच्छा नहीं लग रही है, लो एनर्जी लग रही है। अगर स्टूडेंट्स है तो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर छोटी छोटी गलतियां हो रही है खुद के बारे में, कि मैं कुछ काम का ही नहीं, भविष्य के बारे में निगेटिव ख्याल की
कुछ हो नहीं सकता, या फिर मैं नहीं रहूंगा तो बेटर रहेगा, इस टाइप के विचार काफी ज्यादा आना। और जो मैंने पहले भी कहा था कि मतलब जो आपके खाना, भूख बढ़ना और कम होना, दोनों भी हो सकते हैं डिप्रेशन में। नींद ज्यादा आना या कम आना। और एक इम्पॉर्टेंट साइन जो होता है सीवियर डिप्रेशन में, वो होता है कि खुद को नुकसान करने के या आत्महत्या करने के विचार आना। सो मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये दोनों के बीच में आपने जैसे बताया कि आत्महत्या के विचार आना, तो ये सुसाइडल थॉट्स मतलब जो आत्महत्या के, खुद को हानि पहुंचाने के विचार और डिप्रेशन का क्या संबंध है? तो अगर हम स्टैटिस्टिक देखें कि कंप्लीटेड सुसाइड, मतलब जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोगों को कोई ना कोई साइकेट्रिक बीमारी होती है। और ओके। उसमें से मैक्सिमम मतलब 70 to 75% लोगों को एटलीस्ट एक डायग्नोसिस उनका डिप्रेशन रह सकता है। मतलब उनको मल्टीपल डायग्नोसिस रह सकते हैं, लेकिन उसमें से एक डायग्नोसिस डिप्रेशन का रह सकता है। सो डिप्रेशन और सुसाइड, इसका काफी ज्यादा कोरिलेशन है। करेक्ट। अच्छा, कभी हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सुसाइडल और ये सुसाइडल नहीं है, और ये सुसाइडल है, इसके अंदर ऐसे सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी है और नहीं है? ओके। मैं कहूंगी कि अगर आपके सामने कोई भी अपने को नुकसान करने की बात कर रहा है, या फिर मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, ऐसे कुछ कह रहा है, तो आई थिंक हमें इसे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। करेक्ट। और मतलब अनलेस अनटिल आप प्रोफेशनल हो, तो मुझे लगता है कि इसे आप एक इमरजेंसी करिए, उसे लाइटली मत लीजिए। सो करेक्ट। अगर कोई भी इस तरीके की बातें कर रहा है, तो हमें उसे सीरियसली ही लेना है, और उसे अप्रोप्रिएट जो मेंटल हेल्थ का सपोर्ट चाहिए वो उसे दिलाना है। अच्छा, बहुत बार मैम ऐसा भी होता है कि कोई हंसी मजाक में भी ऐसा बोल देता है कि मुझे बहुत उदास लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा कि मर जाए। तो उसको हम लाइटली लेना चाहिए कि उसको सीरियसली लेना चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि अगर कोई भी कभी भी सुसाइड के बारे में इवन जोक भी कर रहा है, और वो ओके। इंसान पहले नहीं करता था, तो हम्म। वो शायद आपका, दैट कैन ऑल्सो बी अ क्राई फॉर हेल्प। शायद वो ओके। आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कोई इंसान अपनी चीजें बांटना शुरू कर रहा है, जैसे विल बनाना, या फिर अपनी फेवरेट चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, हम्म। मरने की काफी सारी बातें करना, ओके। सो जो चेंजेस है उन्हें हम पिक कर सकते हैं कि ये इंसान पहले ऐसा नहीं करता था, अभी वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोगों को मतलब पहले काफी चिंता में थे, बहुत परेशान थे, और सुसाइड करने के कुछ दिन पहले वो काफी काम लगे उनके फैमिली मेंबर्स को एकदम ओके। से। या ओके। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब मैंने रिसेंटली ये आर्टिकल पढ़ा था, तो हमें लगता है कि ओके बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई या फिर बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, वही लोग सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं करेक्ट। है। इट कैन बी एनी करेक्ट। पर्सन, मतलब कि somebody who has decided, who has made a decision probably, and उसके बाद he or she is feeling calm about it now, अब मुझे और सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो करेक्ट मैम। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है, तो उनके परिवारजनों का, उनके फ्रेंड्स का और उनकी सोसाइटी का क्या रोल रहेगा इसमें? सो सबसे पहली चीज कि जैसे आप हम किसी को ये नहीं कहते, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो हम उसे ये नहीं कहते कि अरे अपना हिम्मत करो और अपना हाथ ठीक कर लो, ठीक है, हम्म। या गेट योर सेल्फ टुगेदर समथिंग। करेक्ट। सो उसी तरीके से गेट योर सेल्फ टुगेदर, या फिर अरे अच्छे पॉजिटिव विचार रखो, और ये करके आप डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स नहीं जाते। ठीक है। मतलब आप कहना ये चाहते हो कि बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं अरे तू डिप्रेस मत हो, पेरेंट्स कैजुअली बोल देते हैं अरे क्यों उदास हो रहा है, तो दिस आर नॉट द कमेंट्स टू बी सीड। यस यस। ओके। क्योंकि कितने लोगों का बुखार ठीक हो जाता है ये बोलने से कि अरे बुखार तो कुछ नहीं रहता, ये तो तेरे दिमाग में ही है। ऐसा, इससे तो कुछ करेक्ट। किसी का कभी कोई बुखार ठीक नहीं होगा। उसी तरीके से मैं फिर से रिएटरेट करूंगी कि ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें सोशल कॉजेस या एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से वो सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन करेक्ट। जो कुछ भी ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं वो ऑलरेडी अंडरलाइन है। तो हम किसी को ऐसे बोल के, या फिर सिर्फ ऐसे मोटिवेशनल टॉक, तू अच्छे अच्छे वीडियोस देख, तू अच्छी अच्छी बुक्स पढ़, या फिर तू प्राणायाम कर, योगा कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इससे नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स ये अच्छी लाइफस्टाइल की आदतें हैं, इनसे हम सबको फायदा होता है, पर वो ट्रीटमेंट नहीं है। जिसे ट्रीटमेंट करेक्ट। की जरूरत है तो प्लीज उसे ट्रिटमेंट दीजिए। एंड इसे करेक्ट। दूसरा चीज कि स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। हाँ समटाइम्स एक अनफॉर्चुनेट हमारा कल्चरल जो फिनोमेना है उसमें डिप्रेस्ड फील करना, यानी एक
लो, मतलब ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, इस तरीके का माना जाता है। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग पीपल हु हैव सफर्ड डिप्रेशन। मतलब जैसे अगर हमारे फिल्म स्टार्स में आप देखेंगे तो दीपिका पादुकोण, या उन्होंने भी करेक्ट। एक्सेप्ट किया है कि उनको डिप्रेशन था, और काफी सारे लोग। ठीक है, सो डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन कंडीशन, एंड इसका आपके पर्सनालिटी के स्ट्रांग होने से या नहीं होने से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सो उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, अगर ऐसे भी कमेंट नहीं करने चाहिए कि उदास मत हो, अरे कुछ नहीं होता, स्ट्रेस मत ले, चिंता मत कर। वेरी 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 नाइसली सेड मैम। अच्छा मैम, अगर कोई इंसान को अगर क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस होता है, या उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत उदास है, निराश है, उनका वजन फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, उनकी नींद खराब हो रही है, उनको मरने के विचार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस का फीलिंग आ रहा है, तो वैसे व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सो ऐसा, सबसे पहले अगर आपको ये सब लग रहा है तो आपको जो आपके आसपास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनके पास जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो आपका डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे, ये देखा जाएगा कि आपका डिप्रेशन का कितना सीवियरिटी है। अगर ये माइल्ड डिप्रेशन है तो कभी कभी कुछ थेरेपीज आपको एडवाइस की जा सकती है, जिससे आपको काफी हेल्प हो सकती है। लेकिन मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है, या फिर माइल्ड डिप्रेशन भी रिपीटेडली आ रहा है, माइल्ड डिप्रेशन विद फैमिली हिस्ट्री कुछ सीरियस मेंटल इलनेसेस की है, तो ऐसे केसेस में हमें दवाइयां देनी पड़ती हैं। और जैसे मैं कह रही हूँ कि अंडरलाइंग हमारे ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो दवाइयां कुछ समय तक रेगुलरली लेनी पड़ती है। मतलब ये दवाइयां मैजिक पिल्स नहीं होती कि आप एक दवाई खा लो फिर दूसरे दिन आप एकदम से ठीक हो जाओगे, इस तरीके की दवाइयां नहीं है। वो अपना समय लेगी काम करने के लिए। अगर बहुत, हाँ, या वांट टू नहीं से नहीं, यू कैरी ऑन, कैरी। या अगर काफी सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स है तो दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, कीटामिन थेरेपी, एंड अभी आजकल तो साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी वगैरह से नए थेरेपीज के भी ऑप्शंस आ चुके हैं। करेक्ट, लेकिन मैडम ऐसा लोग नहीं बोलते हैं कि दिमाग की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसके आदी हो जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मुझे ये बहुत सारे लोगों से पूछना है कि क्या आप ये बीपी की दवाइयों के बारे में कहते हैं, क्या आप ये डायबिटीज की दवाइयों के बारे में कहते हैं? क्योंकि वो जो, इवन वो दवाइयों के साथ भी ऐसा ही है कि आपको एक बार शुरू हो जाती है तो आप लाइफ लॉन्ग लेते हो। ठीक है, इनफैक्ट डिप्रेशन के साथ तो ऐसा है कि कई सारे पेशेंट ऐसे हैं उन्हें कुछ समय तक दवाई लेनी पड़ती है, एंड उनके लाइफ का स्ट्रेस वगैरह वो कम हो जाए तो उसके बाद उनकी दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। बट करेक्ट जब जरूरी है तो उतना समय वो दवाइयाँ खाना उनके ब्रेन के लिए और उनके बॉडी के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है? करेक्ट। और ये जो है आदत लग जाती है, आदत लग जाती है, तो इसका एक्चुअल ये रीजन ये है कि उस समय उनके ब्रेन को जो मॉडरेट करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए वो दवाइयाँ उनके शरीर में काफी ज्यादा उनको हेल्प करती हैं, और उनको फिर उसकी वजह से जो उनको कामनेस या फिर जो अच्छी फीलिंग आती है, तो कभी कभी उन्हें वो फीलिंग ज्यादा वो मिस करते हैं, एंड उसकी वजह से उन्हें लगता है कि अरे हमको आदत लग गई। करेक्ट बट ऐसा करेक्ट। ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब ये टोटली रॉन्ग है स्टेटमेंट, की आदत लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मल दवाइयाँ है, पैरासीटामोल जैसी बुखार की रेगुलर दवा डॉक्टर के कहने पे लीजिए, और टाइम होने पे डॉक्टर उसको बंद भी करवा देंगे। यस। और वेरी। ये जो आदत लगने वाले जो पेशेंट होते हैं ना, वो ये चीज बताना भूल जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए नहीं थे, हम अपने करेक्ट। आप ही फार्मासिस्ट के पास हाँ हाँ, जाके अपनी दवाइयाँ अपने आप से ले रहे थे। बहुत सारे पेशेंट ऐसा करते हैं मैम। एक बार आप दवाई चालू करते हो, आपको पूछ लेते हैं कितने समय चलेगी, फिर 2 साल के बाद डायरेक्ट दिखाने आते हैं साइड यस। इफेक्ट्स लेके। सो इट या इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल। रेगुलर डॉक्टर को मिलना चाहिए। और मैम, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? दवाइयाँ तो एक ऑप्शन हो गया, लेकिन और थेरापीज आप कुछ बोल रहे थे, वो क्या है? ओके। सो जब मतलब जैसे मैंने कहा कि जब माइल्ड डिप्रेशन है तो कुछ कुछ ऐसे थेरेपीज है जो प्रूवन है कि जिससे डिप्रेशन कम हो सकता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके। इसमें हमारे दिमाग में ऐसे कुछ कुछ ये रहते हैं कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, या फिर हमने खुद के लिए कुछ अलग अलग नियम बनाए होते हैं। मुझे हर चीज परफेक्ट ही करनी चाहिए, ऑल और नन, ऐसा रहता है कि ऐसा हुआ तो ही मैं अच्छा हूं, और अगर नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल ही खराब
इंसान हूँ। इस तरीके के हमारे खुद के कुछ थिंकिंग ट्रैप्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो थेरेपीज होती है तो हमें वो उन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, एंड फिर उनको किस तरीके से हम ओवरकम कर सके इसके बारे में आपके थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। फिर और बाकी सारी जैसे माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज है वो भी काफी मदद करती है। And I think even Tavleen ma'am will tell us much more about the therapies. Very true. उनको काफी सारा इसके बारे में पता होगा। ठीक है। Very true. दूसरा ये हम लोग साइकोलॉजिकल थेरेपीज के बारे में बोल रहे हैं। दूसरी बाकी की थेरेपीज हम लोग में भी जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ये जो है हम उनके Correct. बारे में आगे बात करेंगे डिटेल। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वेरी Yes. ट्रू मैम। अच्छा, ईसीटी जो आप बता रहे हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसमें क्या करते हैं? मतलब ये दिमाग को करंट देते हैं कि शॉक देते हैं, क्या होता है ये? ओके। तो सबसे पहले कि ये हमें ईसीटी के बारे में मीडिया ने और काफी सारे इसमें काफी सारे निगेटिव मतलब एक एटीट्यूड तैयार किया है, क्योंकि ये दिखाया ही इतनी बुरी तरीके से जाता है कि अरे बाप रे ये कुछ तो भी भयंकर चीज कर रहे हैं। बट मैं ये डिस्क्लेमर दूंगी कि अगर मतलब आई विल स्टार्ट विद दैट कि अगर कभी मुझे डिप्रेशन हो तो मैं अपने एडवांस डायरेक्टिव में लिख के रखूंगी कि ट्रीट मी विद ईसीटीज। वेरी ट्रू मैम, मेरा भी यही मानना है। अगर मुझे डिप्रेशन होता है, गिव मी ईसीटी फर्स्ट एंड देन गिव मी मेडिसिन इफ रिक्वायर्ड। या एग्जैक्टली, क्योंकि ईसीटी में मतलब एक तो वो इतना बारबेरिक तरीके से नहीं होता है, पेशेंट को प्रॉपरली एनेस्थेशिया दिया जाता है। ओके, और उसके बाद पेशेंट को एक पर्टिकुलर इसमें सेफ इसमें कुछ और दवाइयां देके ताकि उनको मसल कॉन्ट्रैक्ट उनके मसल्स को प्रॉब्लम ना हो, ये सब देख के उनको एक शॉक दिया जाता है। एंड इट्स लाइक अ रीसेट फॉर योर ब्रेन। जो कुछ भी उसमें केमिकल इम्बैलेंस है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। इनफैक्ट जो ईसीटी से रिलेटेड स्टडीज है उसमें उन्होंने देखा है कि जो हमारे ब्रेन की ग्रोथ है या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो सब बढ़ जाती है पोस्ट ईसीटी, मतलब जब इम्प्रूव। ये देखते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन। एंड अगर पेशेंट सीवियर डिप्रेशन का है, सुसाइडल है और कुछ कैटाटोनिक सिम्टम्स वगैरह है तो ऐसे केसेस में इट्स अ मिरेकल ट्रीटमेंट। एंड वेरी ट्रू मैम। आई विल शायद ऑलवेज आपने भी आपके पेशेंट्स में देखा होगा कितना मिरेकलस इंप्रूवमेंट होता है। उसी 9 नंबर ऑफ पेशेंट्स नाउ इन माय प्रैक्टिस। बहुत ही सही स्टेटमेंट है मैम। और इट वाज कितने साल पुरानी ये ट्रीटमेंट है? 1937 में यूगो कालेटी और ल्यूसियो बिनी ने फाइंड किया था। और वो टाइम पे तो मॉडलिटी भी बहुत अलग थी, और अभी तो मॉडिफाइड ईसीटीज होते हैं। तो इट इज वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव। और आपको चॉइस मिले तो पहले ईसीटी सिलेक्ट करना चाहिए, फिर यू कैन गो फॉर मेडिसिन। तो मेरा मतलब ऐसा मानना है, ये ओपिनियन वेरिएबल हो सकता है। या मतलब आई थिंक अभी तक तो मैंने एटलीस्ट 5 से 6 हजार ईसीटीज दिए, मतलब 5 से 6 हजार पेशेंट्स को नहीं बट जितने साइकिल्स इतने ईसीटीज तो मैंने दिए हैं एंड करेक्ट। मैंने एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इवन मैम, आई हैव गिवन, आई डू रिमेम्बर आई हैव गिवन ईसीटीज इन प्रेगनेंसी आल्सो। या यूट्राइन मसल पे कुछ नहीं होता, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो प्रेगनेंसी में अगर जो चीज सेफ है तो बाकी के टाइम तो इट इज वेरी सेफ। इनफैक्ट सो इट इज रेकमेंडेड इन प्रेगनेंसी, हम लोग यार, को एक इंडिकेशन बोलते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। या अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, ये तो बनावटी चीज है। तो आपका इसके बारे में क्या है? मतलब स्टिग्मा एसोसिएटेड जो है, लोगों की मान्यता है, उसको कैसे बदल सकते हो? तो मैं अगेन फिर से मैं आपके ब्रेन और ब्रेन में हुए हुए चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगी कि जब जब मैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बता रही थी तो मैं बात कर रही थी कि कुछ कुछ ऐसी स्टडीज हुई है कि जिसमें आपके ब्रेन में कौन से एरियाज लाइट अप होते हैं जब आप खुश होते हो, जब आप दुखी होते हो, जब आप टेंशन में होते हो, ऐसे ये सब उन्होंने देखा है। तो उन्होंने ये भी देखा है कि डिप्रेशन के व्यक्ति वो जो ससेप्टेबल है डिप्रेशन के लिए, वो व्यक्ति को जब आप कोई अनप्लीजेंट चीज दिखाते हो तो उनके ब्रेन का जो पैटर्न, जो लाइट अप होने का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है जिन लोगों को डिप्रेशन नहीं हो है उन लोगों से। सो इनका ब्रेन डिफरेंट तरीके से चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग मेड अप या फिर ये अपने आप कुछ नाटक कर रहे हैं, ऐसा सब नहीं है। ये एक बीमारी है जिसका, क्योंकि ये इमोशनल है, वो आपको दिख नहीं रही है इसलिए आप लोग ऐसा कहते हैं कि ये नहीं है, बट इट्स एक्चुअली अ डिसऑर्डर। इनफैक्ट इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति में हमें दिखाई देता है। करेक्ट।
तो ये किसी की कोई भी एज में हो सकता है और कोई भी सिचुएशन में हो सकता है। एग्जैक्टली। मैं आपने जैसे ये बताया तो मुझे एक केस रिकॉल हो रहा है कि मेरे पास एक सास बहू और एक बेटा आया था। और सास और बेटे का यही कंप्लेन था कि जब से शादी करके आई है तब से कोई बात नहीं करती है, अपना खाना बना के बैठ जाती है, ना किसी से बोलना ना कुछ करना, एक जगह बैठी रहती है, गुमसुम रहती है। तो उनको वो स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत मारते थे चीजें करवाने के लिए। फिर उनको रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर ब्रेन, एंड देन वो मेरे पास लेके आए थे और नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल। वो लड़की एकदम आउटबाउंड थी, बहुत सारे उसके फैमिली में स्ट्रेसर्स थे और बहुत सारे न्यू फैमिली में भी स्ट्रेसर्स थे, प्लस फिजिकल हरेसमेंट था। और जैसे ही ये सब चीजें करेक्ट हुई, शी वाज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद द मेडिसिन। तो एंड ये बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सही बात है। अच्छा मैम, आपसे आपको एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि किसी को सुसाइड है, उसका फैमिली नहीं है, और मतलब सुसाइडल टेंडेंसी, और उसका कोई परिवारजन नहीं है, वो अकेला रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो जनरल पब्लिक को क्या मैसेज है, मतलब पीपल लोगों को, जैसे हम मार्केट में घूम रहे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी को कि ये सुसाइडल है, कि ये डिप्रेस्ड है, ये उदास है? ओके। सो जैसे मैंने कहा था कि आपको मतलब अभी अगर कोई स्ट्रेंजर है तो प्रोबेबली थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर भी आपको बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रहे हो। स्पेसिफिकली अगर सपोज कि आप कहीं जा रहे हो और कोई मतलब पुल के एकदम कॉर्नर पे खड़ा है, या फिर आप देख रहे हो कि कोई डेंजरस तरीके से ड्राइव कर रहा है, या फिर रास्ते पे कोई डेंजरस तरीके से खड़ा है, ठीक है, ये स्ट्रेंजर्स के लिए हुआ। और अगर आप हॉस्टलाइट्स की वगैरह बात करो तो आपका कोई दोस्त है जिसकी बिहेवियर में काफी आपको चेंजेस लग रहे हैं, जो सैडनेस वगैरह दिख रहा है, या फिर वो सुसाइड की बातें कर रहा है, या फिर करेक्ट। आपके दिमाग में जस्ट एक हंच आ रहा है कि नहीं दिस पर्सन डजंट लुक ओके, ये पहले ऐसा नहीं था या नहीं थी, अभी ये कुछ डिफरेंट लग रही है। अनदर चीज सब्सटेंस यूज, के सब्सटेंस यूज एंड सुसाइड उसका भी काफी ज्यादा कनेक्शन है। तो अगर पहले कोई एडिक्शन नहीं था और आजकल बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है या कोई और एडिक्शन कोई भी किसी भी तरीके का, तो करेक्ट। ये सारे चेंजेस अगर आपको आपके दोस्तों में या किसी और इंसान में दिख रहे हैं तो मे बी आप सस्पेक्ट कर सकते हो। और इसका सबसे इजीएस्ट तरीका है, पहला है आस्क। ठीक है, हमें पूछना चाहिए। एक बहुत मतलब हानिकारक मिथ है सुसाइड के बारे में कि अगर हम किसी से पूछेंगे कि क्या आपके दिमाग में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं तो उसके दिमाग में सुसाइड के ख्याल डालेंगे। ऐसा करेक्ट। कुछ नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट। हमें पूछना चाहिए। ठीक है, पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। आप सिंपली ऐसा पूछ सकते हो कि मुझे दिख रहा है कि तू काफी स्ट्रेस में है, आजकल तेरे लाइफ में XYZ चीजें चल रही है, और जब ऐसा होता है तो कभी कभी लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, तो क्या तेरे दिमाग में भी आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं? आप पूछ सकते हो और ये डायरेक्टली पूछिए। ठीक है। करेक्ट। अब इसमें एक चीज ये है कि हो सकता है सामने वाला हाँ बोले, हो सकता है सामने वाला नहीं बोले। ठीक है, अगर आपको स्ट्रांगली फिर भी लग रहा है सामने वाला नहीं बोल रहा है फिर भी, तो आप जस्ट मतलब उसको ये नहीं करना कि नहीं नहीं बताना बताना बताना, ऐसा नहीं है। वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट सामने वाले के विशेष के, ही और शी विल डिसाइड कि वो कब ओपन अप होना चाहते हैं। बट स्टिल हम उनको सपोर्ट देने के लिए हम उनको ये ऑप्शन दे के रख सकते हैं कि अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो आई एम हियर, आई विल बी रेडी टू सपोर्ट यू। ये सामने वाले को बताना जरूरी है। ठीक है। सेकंड चीज, अगर सामने वाले ने हाँ बोला तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि हाँ ऐसे कैसे बोल रहा है, या फिर तेरी तो जिंदगी इतनी अच्छी है, तेरी जिंदगी में तो सब अच्छा है, XYZ की कितनी खराब है और तू कैसे सुसाइड के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो जब सामने वाला आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा करके आपको इतने अपने दिल की बात बता रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी इच्छा भाषण सुनने की नहीं है उस समय। करेक्ट। सो उस समय हमें नॉन जजमेंटली उस चीज को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। करेक्ट। सो हम किस तरीके से उस हाँ को रिएक्ट करते हैं वो डिसाइड करेगा कि वो इंसान आगे आपको इस कन्वर्सेशन में शामिल करेगा या नहीं, या आगे आपको बताएगा या नहीं। ठीक है? करेक्ट। तो और ये आई नो कि ये हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें एक न्यूट्रली उस इंसान के शूज में जाके उसे समझने की जरूरत है। ठीक है। करेक्ट। सो जब अगर कोई इंसान आपके सामने ये चीज एक्सेप्ट करता है तो एक्सट्रीम टाइप के रिएक्शंस नहीं देने हैं उनको, इमीडिएटली एडवाइस देना नहीं शुरू करना है उनको, बाकी लोगों का हवाला नहीं देना है कि अरे ये घर वालों के बारे में सोच वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी सोच चुके हैं, वो इस पॉइंट पे आए हैं। तो आप हम उनको कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं।
फिर उसके बाद आता है कि एक्सप्लोर, मतलब सेकेंड जो स्टेप हम कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि एक तो नॉन जजमेंटली हम सुने कि उस इंसान क्यों वो ये कर रहा है। अब नॉन जजमेंटली सुनना इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर चीज में हाँ हाँ बोले कि हाँ हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, दिस इज नॉट ऑल्सो अ थिंग टू से। राइट। फिर हम लोग कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम सामने वाले को ये बता सकते हैं कि ओके ठीक है, जिस सिचुएशन में आप हो तो सुसाइड एक ऑप्शन हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग कि इट्स राइट इट्स रॉन्ग, ये गलत है वगैरह, वी आर जस्ट सेइंग कि इट कैन बी वन ऑप्शन, बट कैन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, क्या कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड मे बी ग्रेजुअली हम उस कन्वर्सेशन को लेके जाए, या फिर हम सामने वाले को सिर्फ इस स्टेज पे लाके पॉज तक लाके छोड़े कि मे बी अभी आप बहुत इमोशनली स्ट्रेस्ड हो एंड इस जगह पे मे बी आपने लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एंड इसके बारे में हम लोग फिर आप उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या किसी ट्रेन्ड इंसान के पास ले जाके आगे मतलब यू कैन जस्ट हैंड ओवर कि आगे का वो इंसान देख लेंगे। करेक्ट। या वेरी ट्रूली सेड मैम कि उसको जितना आप सपोर्ट करो पॉजिटिव वे में तो उतना उसको हेल्प मिलने वाला है। मैम अभी आजकल जो ट्रेंडिंग है जैसे एआई है या चैट चैट जीपीटी है, उसमें भी इंसान अगर थोड़ा सा भी लिखता है तो बहुत सारी चीजें आती है, वो कितना हेल्पफुल है आपके हिसाब से? ओके तो इसके ऊपर भी कई स्टडीज हुई है कि एआई सपोर्टेड थेरेपी माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स में काफी सारे पेशेंट को इससे हेल्प हुआ है। इनफैक्ट कि जो कॉस्ट इश्यूज होते थे, जो कॉस्ट ट्रीटमेंट गैप होता था, तो कई सारे लोगों के हिसाब से ये कम हो गया है। अब हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ये कितना लागू होता है ये एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कितने मतलब ठीक है यंगर पॉपुलेशन थोड़ी सी टेक्स हैवी है हमारी, बट हमारे ओल्डर पॉपुलेशन उनको कितना इस चीज से फायदा होगा ये हमें देखना पड़ेगा। इंडिया में इतनी अभी तक एआई बेस्ड थेरेपीज की उतनी स्टडीज अब तक नहीं हुई है, सो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। बट अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स है तो उसके लिए हम ये कुछ थेरेपीज के टूल्स यूज कर सकते हैं। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंटरनेट इज अ डेंजरस प्लेस एज वेल, क्योंकि वहां पे जो इंफॉर्मेशन है सो सारी इंफॉर्मेशन सही ही होगी कि जो कुछ भी है वो साइंटिफिकली या फिर रिसर्च ही चीजें हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे कुछ कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिलेगी जो शायद सही नहीं होगी। सो मैं इसको विथ पिंच ऑफ सॉल्ट ही यूज अच्छा करूंगी। मैम, कभी कभी ऐसा भी हम एडवर्टाइज पढ़ते हैं इंटरनेट पे कि अगर आपको डिप्रेशन है तो ये पिल लीजिए, वो पिल लीजिए, ये आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई लीजिए, तो ये एडवाइजेबल है कि नहीं है मैम? मैं आई विल नॉट रिकमेंड। एक तो सबसे पहले जिन थेरेपीज के बारे में मुझे पता नहीं है आई विल नॉट कमेंट अबाउट देम, हो सकता है। बट अगर आप बिना डॉक्टर से मिले अगर आप डायरेक्टली दवाई ले रहे हो तो वो मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि जो कोई भी आपके डॉक्टर, जैसे आपके डॉक्टर जीत, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 15 साल पढ़ाई की है, उसके बाद 9 साल का एक्सपीरियंस है, एंड देन वो डिसाइड करके आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, या वेरी ट्रू। कि ये दवाई ठीक है ये दवाई ठीक नहीं है, या फिर इस पेशेंट को ये दवाई देके ज्यादा बेटर लग सकता है। सो ये इवन तो आपको लगेगा कि 5 मिनट में कंसल्टेशन हुआ, उस कंसल्टेशन के पीछे में भी 20 साल की मेहनत हो सकती है। सो ये ऐसे जो ब्लैंकेट प्रिस्क्रिप्शंस है तो वो कितने लोगों को उसका फायदा होगा कितने लोगों को उसका नुकसान होगा ये जानना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, बहुत बार मैम ऐसा भी देखा है कि जैसे ही इंसान रूटीन मेडिकल स्टोर पे जाता है और बोलता है सर सर्दी सर्दी खांसी हो गई है, तो मेडिकल वाला दवाई दे देता है। फिर बाद में ऐसे भी मेरे पास केसेस आए हैं कि कुछ कमेंट करते हैं और उनकी बातचीत करते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, एंग्जाइटिक दे देते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स दे देते हैं। तो ये करना चाहिए मैम कि नहीं करना चाहिए? अ, जैसे मैं रिपीटेडली कह रही हूँ कि हर एक दवाई देना, मतलब जब देते हैं तो उसके पीछे काफी बड़ा साइंस है। एंड क्यों वो दवाई देनी है, अगर ये दवाई दी तो क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब देखने के लिए ना डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं। मतलब जैसे बेसिकली कि जो चीज हमें पता है वही हमें दिखती है, ऐसी एक कहावत है। तो डॉक्टर्स को पता है कि ओके ये दवाई लेने से ये चीज हो सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो प्रोबेबली आपके डॉक्टर इमीडिएटली पहचान ले या फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसके बारे में पूछे। ठीक है, अब ये चीजें प्रोबेबली बाकी प्रोफेशनल्स को नहीं पता होंगी।
सो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप रेगुलर अपना फॉलोअप आपके डॉक्टर्स के साथ रखिए। फिर उसके साथ साथ जैसे कुछ कभी कभी सिर्फ दवाइयाँ नहीं देनी होती है, बाकी थेरेपीज भी एडवाइस करनी होती है, और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं बता सकते। तो इट विल बी बेटर कि आप आपके डॉक्टर से जाके मिले, उनसे प्रॉपर जो कंसल्टेशन है वो आप करें, एंड वो आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसा आपको आगे जाना है। करेक्ट मैम, रिकवरी कितने % पॉसिबल होती है डिप्रेशन में? डिप्रेशन में रिकवरी इज ऑलमोस्ट लाइक 80, मतलब वॉट एवर आई हैव सीन, सो 80% पेशेंट दे फील बेटर ऑन मेडिकेशंस। मतलब उनका जो प्रीवियस जो कुछ वो काम करते थे, उनको जैसा लगता था वो सब उनको अच्छा लग जाता है। अभी रिकवरी डज नॉट मीन स्टॉपिंग ऑफ मेडिकेशन। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको दवाइयाँ थोड़ी लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो दवाइयाँ रोक देते हैं तो उनको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं। सो आई वुड से कि डिप्रेशन के केसेस में रिकवरी इज ऑलमोस्ट लाइक अ रूल। सारे पेशेंट को बेटर महसूस होता है कि दवाई बंद होना, अगर ये आपका रिकवरी का क्राइटेरिया है तो वो थोड़ा सा अच्छा, रेगुलर दवाई लेंगे और आपकी एडवाइस फॉलो करेंगे तो रिकवरी 100% बोल सकते हैं? या यू कैन से। अगर थेरापी फॉलो करेंगे, दवाई फॉलो करेंगे, तो हैव यू सीन 100% रिकवरी इन द पेशेंट्स? आई विल नॉट से 100%, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स फॉलोअप में नहीं आते, बट आई वुड से मोर देन 85%। वेरी नाइस। सो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट चांस है कि वो बीमारी में से आ सकता है बाहर। सो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी एलोबरेटिव मैसेज कि अगर आपको उदास लग रहा है, निराश लग रहा है, कुछ भी लाइफ में स्ट्रेस है, एक बार आप कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को मिलिए, आइडेंटिफाई करिए क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ इलनेस आता है बाहर, you have to ask the therapist to give some medicine or some treatment which is advisable from his side. तो ये सेल्फ मेडिकेशन से नहीं होता है ठीक, आपको रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर दीपांजलि देशमुख मैम ने। कभी भी आपको कोई हेल्प लगे तो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट एनी वन ऑफ अस। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट है पैन इंडिया में, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स है पैन इंडिया में, आप किसी की भी हेल्प लीजिए, all of them were equally trained. So thank you so much, Dr. Dipanjali ma'am, for giving this elaborative review on depression and suicide. I will ask Tawleen to close up the session. Thank you so much, Dipanjali ma'am, for such an amazing session. Depression is something जो मुझे लगता है it is so common yet so misunderstood that we require much more information regarding it. And it was such an insightful session with you, ma'am. Thank you so much for this. If our viewers are looking for much more information, you will find associated links in the bio. Thank you so much, Jeet sir. Thank you so much, Dipanjali ma'am. थैंक यू। Thank you.